नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ द्वारा आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। बीदर की प्रसिद्ध वकील अनीता मुलगे का अचानक निधन। धर्मांतरण विरोधी कानून, कर्नाटक हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं में कोई मतभेद नहीं, डीके शिव कुमार। गोवा रेस्टोरेंट को लेकर कांग्रेस का स्मृति ईरानी पर हमला, वकील ने आरोपों को बताया निराधार। संजय रावत ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है दिल्ली। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ द्वारा आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर के लाड़गेरी मठ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर मठ परिसर में पौधा लगाकर चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया और आजाद को याद किया। मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि हम सबको पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि पेड़ लगाएं और परिसरों को हरा भरा बनाएं। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष विजय कुमार बंडे, विनय कुमार, सुनील भावकट्टी, विजय कुमार अष्टूर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सभी को नमस्कार, आदाब। आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ लालवाड़ी में। सभी मिलके युवा हमारे मिलके मना रहे हैं। यहाँ कम से कम 3 साल से बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और ये बहुत मुझे खुशी है कि मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो उनकी थिंकिंग थी, जो आज़ाद पैदा हुए थे वो आज़ाद मरे, जो कि ब्रिटिश के हाथ में मतलब आके जो उनको कैच करने आए थे, उन्होंने अपने आप को मतलब गोली मार लिए थे। उनकी जो थिंकिंग थी वो युवाओं को उनके बारे में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ये मेरी सभी से गुजारिश है। चंद्रशेखर आज़ाद युवक संघ लाडगೇರಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡೆ ಅವರು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಲಾಡಗೇರಿಯ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಗೀಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು, ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮ ಸಸಿ ನೆಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸರಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಸಿ ನೆಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖದೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ। ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಜಯಂತಿ ಇದು ಸರ್ವ ಲಾಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂಡೆ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಲಾಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಯುವ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಡಗೇರಿ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೂರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲುಗಿರಿಯವರು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟೀಮು 2 ದಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಮಳೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ನಿಂತಿಲ್ಲ। ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯುವಕರಾಗಿ ನಾವು अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लालवाड़ी के अंदर एक नौजवानों ने जो युवा संघ बनाया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, जो वाकई एक काबिल तारीफ़ है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब हमारे आज़ाद भारत देश के ऐसे युवा थे जो देश की आज़ादी के लिए अपने तन मन से जो सुना देश के मुस्तकबिल और भविष्य और देश को आज़ाद देखने के उनके ख़यालात से उन्होंने अपनी जो सुना जान की बलिदान दी।
और ये काबिल तारीफ़ है। ये नौजवान जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब के ख़यालात को जो सो ना पसंद करते हैं और उनके ख़यालात के ऊपर देश के अंदर देश के युवाओं में जागृति और जो सो ना देश के युवाओं में एक जज्बा पैदा करना चाहते हैं। हुब्बुल वतनी का यानी देश से मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है ये संघ। बीदर की मशहूर वकील अनीता मुलगे का कल अचानक निधन हुआ है। उन्होंने बहुत ही कम समय में वकालत में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। एक सिविल वकील होने के नाते उन्होंने कई मामलों में सफलता हासिल की थी। उनके हाथों में और कई मामले हैं। ऐसे में उनका अचानक निधन होने से उनके क्लाइंट में अफसोस है। इसके अलावा वकील बिरादरी ने भी शोक व्यक्त किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस माह की शुरुआत से बीदर जिले में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पिछले 2 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। इस लगातार बारिश से शहर की सड़कों का बुरा हाल है। आज लोगों को चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर सभा की लापरवाही के कारण शहर में नालियों की गंदगी सड़कों पर उतर आई है। लोगों को इस गंदगी को झेलना पड़ रहा है। सड़कों पर रहे खड्डों में पानी भरने से यातायात में भी दिक्कत आ रही है। अगर नगर सभा समय रहते यानी गर्मी के मौसम में सड़कों की मरम्मत और नालियों की सफाई करवाई होती तो आज शहर का यह हाल नहीं होता। आज शहर की ऐसी कोई सड़क या क्षेत्र नहीं है जो नगर सभा की लापरवाही नहीं दर्शा रही है। इस लगातार बारिश से आज शहर के मुख्य सड़कें भी खस्ता हालत में आ गई हैं। शहर में हर ओर गंदगी फैली हुई है। लोग इससे काफी परेशान हैं, तो वही बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। सड़कों के बीचों बीच रहे खड्डे देखकर ऐसा लगता है कि नासा द्वारा चांद की तस्वीरें हैं, जहां मानव जीवन शुरू हो गया है। इन खड्डों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई क्रम नहीं लिया जा रहा है। नगर सभा बेफिक्र और जनप्रतिनिधि गायब हैं। मात्र किसी फंक्शन में ही जनप्रतिनिधियों को देखा जा सकता है, लेकिन जनता के लिए काम करते हुए नहीं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। हज 2022 के कर्नाटक हज यात्रियों के वापस लौटने का सिलसिला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य भर से हज पर गए हुज्जाज पिछले 10 दिनों से लगातार वापस लौट रहे हैं। बेंगलुरु हज टर्मिनल पर मौजूद रहे केपी न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से हाजियों ने बताया कि उनकी हज यात्रा बहुत ही सुगम रही और कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला द्वारा की गई सभी व्यवस्था ठीक रहने से लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर मसूद ने बताया कि हज समिति के काबिल अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए सभी क्रम ले रखे थे, जिससे हाजियों को सऊदी अरब में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। कचेरीवाला खुद प्रतिदिन और हर हज यात्री की फ्लाइट के लैंडिंग से लेकर हाजी के टर्मिनल से बाहर आने तक मौजूद रहकर सभी कार्यों पर नजर रखते आ रहे हैं, जिससे हाजियां बहुत खुश हैं और कचेरीवाला के काम की बहुत तारीफ किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की संरक्षण अध्यादेश 2022 की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती देते हुए कि यह लोगों की धार्मिक पसंद के प्रति असहिष्णुता प्रदर्शित करता है, जो कि धर्मनिरपेक्षता ताने बाने पर हमला है, जो भारतीय धर्म को प्रभावित करता है। एक साथ लोकतंत्र कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और आपत्ति दर्ज करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता यूटी खादर ने भाजपा को चुनौती दी कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी से पूछताछ के संबंध में प्राथमिकी प्रति दिखाए। विरोध के बाद उन्होंने ब्राह्मणबार में मीडिया कर्मियों से कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। बेंगलुरु ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में क्षेत्रवार श्रेणी में दूसरा उच्चतम उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया है, जो शुक्रवार को घोषित किया गया था। बेंगलुरु ने कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए देश में दूसरा स्थान हासिल किया। तिरुवनंतपुरम देश में क्षेत्रवार श्रेणी में सबसे ऊपर है। सीबीएसई क्षेत्रों को पूरे कर्नाटक को कवर करने वाले बेंगलुरु क्षेत्र के साथ 16 भागों में विभाजित किया गया है। सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु क्षेत्र ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 98.16% उत्तीर्ण किया है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से केवल 0.67% पीछे और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में 99.22% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया है, जो तिरुवनंतपुरम से केवल 0.46% पीछे है। कांग्रेस के कई नेताओं को सीएम पद पर दावा करने के बीच केपीसीसी प्रमुख डीके शिव कुमार ने हुबली में कहा कि जिस किसी के पास पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी का आशीर्वाद होगा वह सीएम बनेगा।
इस पद के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच किसी भी मतभेद से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक मीडिया निर्माण मामला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार की 3 से 4 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त कांग्रेस बनाने पर उनकी टिप्पणी पर बचाव करते हुए उन्होंने कहा, मीडिया गलत व्याख्या कर रहा है कि उन्होंने क्या कहा। मैं रमेश कुमार के साथ खड़ा हूं और यह पार्टी के हित में है। उन्होंने वास्तव में जो कहा वह राष्ट्र के लिए नेहरू गांधी परिवारों की पीढ़ियों द्वारा बनाई गई संपत्ति को संदर्भित करता है, यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान भी देता है। राष्ट्र की वर्तमान स्थिति उनके समृद्ध योगदान के कारण है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम।
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पुत्री गोवा में गैरकानूनी बार चला रही है। मुख्य विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी आग्रह किया है कि वह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को बर्खास्त करें। स्मृति ईरानी की पुत्री की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। केंद्रीय मंत्री की पुत्री के वकील कीरत नागरा ने एक बयान में कहा है कि उनकी मुवक्किल सिलिसोल्स नामक रेस्टोरेंट की न तो मालकिन है और न ही इसका संचालन करती हैं, तथा किसी प्राधिकार की ओर से उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस भी नहीं मिला है। नागरा ने कहा कि निहित स्वार्थ वाले कई लोगों द्वारा गलत, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं, जो उनकी मुवक्किल की मां प्रतिष्ठित नेता स्मृति ईरानी के साथ राजनीतिक स्वार्थ साधने का प्रयास कर रहा है। वकील ने आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे लोग सिर्फ इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं ताकि तथ्यों की जांच परख किए बिना मुद्दा विहीन बात को सनसनी बनाकर पेश किया जा सके, और वे मेरी मुवक्किल को सिर्फ इसलिए बदनाम करने पर आमदा है कि वह एक नेता की पुत्री हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय रावत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को ध्यान में रखकर शिवसेना की स्थापना की थी। अब चुनाव आयोग इस पर सवाल उठा रहा है। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद शॉकिंग है। रावत की यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें उसने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की मेजॉरिटी साबित करने संबंधी कागजात मांगे हैं। संजय रावत ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। वही चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत दोनों पक्षों से कागजात मांगे हैं। इससे पूर्व शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण खुद को दिए जाने की मांग की थी। इसके पीछे उन्होंने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद अपनी संख्या को आधार बनाया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटो शूट पर सपा नेता अबू आजमी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करना आजादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। अबू आजमी ने ट्वीट करके कहा, नंगे जिस्म की नुमाइश करना आर्ट व आजादी कहलाता है तो एक तरफ संस्कृति के मुताबिक लड़की अपनी मर्जी से बदन को हिजाब से ढकना चाहे तो वह उत्पीड़न व धार्मिक भेदभाव कहलाता है। हमें आखिर कैसा समाज चाहिए। सपा नेता आजमी ने इस ट्वीट के साथ तस्वीर भी शेयर की है। इसमें लिखा है कि नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करने की आजादी है तो स्कूल, कॉलेज और सब जगह लड़की को अपनी मर्जी से स्कार्फ, हिजाब, बुर्का पहनने की आजादी क्यों नहीं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने रणवीर सिंह का भी इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला चिकित्सालय मुरादाबाद के चिकित्सकों का स्थानांतरण करने के बाद रिक्त पदों पर अन्य चिकित्सकों की तैनाती न किए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी शान अली शानू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे बुलंद किए। इस मौके पर जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को एक ज्ञापन भी पेश किया गया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, आज हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। जो जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का ट्रांसफर हो गए हैं और कुछ रिटायर हो गए हैं, उसकी वजह से, और शासन ने जो है उस पर नियुक्ति की नहीं है। यहाँ से डॉक्टर भेज तो दिए गए वहाँ, अगर यहाँ आए नहीं डॉक्टर, जिसकी वजह से गरीब जनता को बहुत परेशानी हो रही है। अस्पताल में वो भटक रही है जनता, उसको लेकर हम इनसे मिले थे आज। तो डीएम साहब तो है नहीं, एडीएम साहब ने हमसे ज्ञापन लिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है
कि हम इस समस्या का निदान कराएंगे। हमारा कहना यह है कि जो आज की गवर्नमेंट है वो जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि जो समस्याएं हैं जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, अब जैसे डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों में मास्टरों की कमी है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए उस पर उसको गवर्नमेंट का हमारी कोई ध्यान नहीं है। क्या मानते हैं, क्या जिला अस्पताल में अंदर क्या? देखिए, खुद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक साहब और मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने खुद जो ये ट्रांसफ़र हुए हैं पीछे उस पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि जो ट्रांसफ़र हैं वो बिल्कुल नियम विरुद्ध तरीके से कर दिए गए हैं। ये देखा ही नहीं गया कि इस अस्पताल में कितने डॉक्टरों की तैनाती है, कितने वहाँ से हटाने हैं। वहाँ उनका जो प्रमुख सचिव था उसने सारे ट्रांसफ़र एकदम कर दिए मुरादाबाद ज़िले से भी, जिसकी वजह से यहाँ के जो मरीज़ हैं वो परेशान हैं। पंजाब में हुए रन ऑफ चुनाव में हमजा शाहबाज की जीत के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के समर्थकों ने इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर, पेशावर में विरोध प्रदर्शन किया। सभी PMLN के हमजा शाहबाज के फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के फैसले का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि PTI के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीती रात चुनाव परिणामों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हमजा शाहबाज ने पंजाब विधानसभा में हुए रन ऑफ चुनाव में परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब के CM पद पर जीत हासिल की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिप्टी स्पीकर द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के 10 वोटों को खारिज कर दिया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रितेश सिधवानी की पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा। अब समाचार खेल जगत की। श्रेयस अय्यर कोहली के इस विराट रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए, लेकिन पहले वनडे ने दे दी दोहरी खुशी। अंत में समाचार बाजार की। रुपए के लुढ़कने पर RBI गवर्नर ने कहा, येन, यूरो, स्विस फ्रैंक और पाउंड के मुकाबले कम टूटा रुपया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ द्वारा आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। बीदर की प्रसिद्ध वकील अनीता मुलगे का अचानक निधन। धर्मांतरण विरोधी कानून, कर्नाटक हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं में कोई मतभेद नहीं, DK शिव कुमार। गोवा रेस्टोरेंट को लेकर कांग्रेस का स्मृति ईरानी पर हमला, वकील ने आरोपों को बताया निराधार। संजय रावत ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है दिल्ली। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।